ठीक है, टीवी ओपन। Is PPT is visible to everybody? Students, am I audible? Students, am I audible? Students, Gyan, Raghav, am I audible? Students, am I audible? म्यूट किया है लेकिन Students, am I audible? या मैम Okay. Yes, Is the screen is visible to everybody? जी मैम Okay. Very good morning to all of you. I am Kehkesha Razi, faculty of SK and Target. Today we are going to start a great American writer who is also known as the representative of the of America. Today we are going to deal with this. First of all, I'll explain about the biography and his important works. So let's start. Walter Whitman was born on May 31, 1819, in West Hills on Long Island in New York. So he was an American writer and he was born in New York, and West Hills is the name of a place where he was born. Okay. He was the second son of Walter Whitman and the housewife and a house builder and a Louise Van Welser English woman. So he was the second child. Actually, his father has a 9 children, and he was the second child of his father. And his father was a Dutch, and his mother was an English woman. His father was a Dutch, and his mother was a English woman, and his father was a house builder. Actually, he was a builder. He was the son of the builder. In 1820s and 1830s, the family, which consists of 9 children, live in Long Island and Brooklyn, where the white man attended the Brooklyn public school. Actually जो है क्या था कि वो पहले जो है earlier he was living in Long Island में रहते थे, फिर उसके कुछ दिन के बाद जो है he was shifted to Brooklyn में वो चले गए थे, and from there he get his schooling. बहुत ज़्यादा उनकी schooling नहीं हुई थी because he has lack of money because of the some economical issues. वो बहुत ही ज़्यादा educated नहीं थे, but he was a voracious reader of Shakespeare, Dante and Homer. So he grabbed knowledge from from the scholars of literature. Largely self-taught, he read voraciously, became acquainted with the works of Homer, Dante, Shakespeare, and Bible, and he was influenced by Emerson and Carlyle. So, as I have explained, that yeah, because of some economical issues, he didn't get higher education, but he was a voracious reader of Homer, Dante, Shakespeare, and Bible. So he grabbed knowledge from the scholars of literature, from the great scholars, and he was highly influenced by Emerson and Carlyle. These are the great writers and as well as the philosophers. Okay, he was known as the bard of democracy. This line is very important because most of the time is this question is asked that who is known as the bard of democracy. So these are the names by which he is known uh, by the bard of democracy, father of free verse, great great poet, Homer, uh, home होम एरिक्सन और होम स्पेन फिलोसोफर. सो ये जो है ये 4-5 नाम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So you have to keep in mind, as I told you earlier, that he has
at the he is known as a bard of democracy because क्या हुआ था कि जो है डेमोक्रेसी जो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स हो रहे थे अमेरिका में, सिविल वार हुआ था, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वार तो उस वक्त नहीं हुआ था, लेकिन सिविल वार चल रहा था और भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी। तो जो पीपल थे वहाँ के जो है दे आर वेरी मच कंफ्यूज दैट वेदर द अमेरिका विल सर्वाइव और द डेमोक्रेसी विल फ्लरिश, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो लोगों के दिमाग में जो है बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, बट इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे से लोगों को समझाया कि जो है अमेरिका विल सर्वाइव एंड द डेमोक्रेसी विल फ्लरिश। तो इसीलिए जो है इनको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा था, क्योंकि इन्होंने अपने विद द हेल्प ऑफ हिज पोएट्री ही plays a very vital role in establishing or in flourishing democracy in America. So इसीलिए जो है इनको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्स इसलिए कहा जाता है। ये इसका कोई जो है एविडेंस नहीं है कि ही इज़ अ इन्वेंटर थे, या फिर इन्होंने जो है उसको ये कहीं पे इसका जो है जिक्र नहीं मिलता है कि उन्होंने ही जो है उसको इन्वेंट किया था या कुछ ऐसा नहीं मिलता, बट ये इनको फादर ऑफ जो है फ्री वर्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है ही बहुत ही ज़्यादा अपने पोइट्री में जो है फ्री वर्स का यूज़ किया है और उसको पॉपुलराइज किया है फ्री वर्स को। सो ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ फ्री वर्स। ग्रेट पोएट होमर इस स्पन एरिक्सन और स्पन फिलोसफर भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो फिलोसफीज थी उसको प्रोपाउंड किया है। तो ये सारे नामों से जो है उनको जाना जाता है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड द नेम्स। ओके, यहाँ पे से हमारा ये क्वेश्चन जो है, इस पैराग्राफ में ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। उनका जो है बर्थ कहाँ हुआ था, और जो है दूसरा वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और तीसरा ये जो नाम है इससे क्वेश्चंस आता ही आता। सो यू हैव टू कीप इन माइंड। अब नाउ वी कम टू द करियर। उनकी करियर की बात अगर हम करते हैं, अप्रेंटिस टू द प्रिंटर, वो जो है स्टार्टिंग एज आई टोल्ड यू कि जो है उनके पास पैसे की कमी थी, तो उन्होंने बहुत सारा काम करना शुरू किया था। वो न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग का भी काम करते थे, वो जो है एक डॉक्टर के असिस्टेंट्स भी थे, वो एक लॉयर के असिस्टेंट भी थे। तो उन्होंने जो है बहुत सारे छोटे मोटे जॉब किए थे फॉर द सर्वाइवल के लिए जो है उन्होंने बहुत सारा जो है काम किया था, छोटे छोटे जो है काम किए थे, और जहाँ से जो है उनको बहुत प्रेरणा भी मिली, और ये चीज़ों का रिफ्लेक्शन जो है उनकी पोएट्री में भी हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ही कम उम्र से जो है उन्होंने जो है न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ओनली एट द एज ऑफ 17 जो है ही स्टार्टेड टीचिंग इन वन रूम हाउस स्कूल्स एट द लॉन्ग आइलैंड। तो सिर्फ 17 साल की उम्र में ही जो है उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही इज अ पोएट, ही वाज अ एसेइस्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट ही इज। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना होगा कि ही वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट भी थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर, अभी हम आगे बताएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर को जो है एडिट में एज अ एडिटर वर्क किया था, और जो है उन्होंने इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए। तो उनको जो है जर्नलिस्ट भी जाना जाता। तो वो सिर्फ पोएट और इसेइस्ट ना थे, बल्कि वो जो है एक जर्नलिस्ट भी थे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ही फाउंडेड द वीकली न्यूज़पेपर द लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग आइलैंड के जो क्या थे, वो फाउंडर थे, एंड लेटर एडिटेड अ नंबर ऑफ ब्रुकली एंड द न्यूयॉर्क पेपर्स इंक्लूडिंग द ब्रुकली डेली ईगल। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि न्यूयॉर्क में और जो है ब्रुकली में उन्होंने बहुत सारे जो है न्यूज़पेपर्स थे जहाँ पे उन्हें ही हैज़ वर्क एज एन एडिटर, और उन्होंने जो है ब्रुकली डेली ईगल, जो कि उस वक्त का बहुत ही फेमस जो है न्यूज़पेपर था, तो उसमें भी जो है इन्होंने काम किया है। और ये क्वेश्चन जो है वो फाउंडर थे किसके, ही फाउंडेड अ वीकली न्यूज़पेपर लॉन्ग आइलैंड जो है उसके जो ये फाउंडर थे। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड।
At the outbreak of the Civil War, Whitman vowed to live a purge and cleanse a life. He worked as a freelance journalist and visited the wounded at the New York City area hospital. ये जो मैंने आपको बताया है कि there are many things that occurred at that time. जैसे जो है एक अब्राहम लिंकन का डेथ हुआ था, डेथ तो नहीं, असैसिनेशन हुआ था. दूसरा जो है सिविल वॉर में जो है बहुत ही ज़्यादा लोग मर गए थे, डेथ बहुत ही ज़्यादा आम हो गया था. तो ये जो घटना थी, इन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा, ही वॉज डीपली अफेक्टेड विद द डेथ दैट अकर्ड इन सिविल वॉर. और उनका जो खुद का भाई था वो भी जो है घायल हो गया था. तो जब वो उसे पहली बार हॉस्पिटल में देखने के लिए गए तो ही वॉज वेरी मच टेंस्ड. उनको बहुत ही ज़्यादा जो है टेंशन में आ गए थे जो लोगों की हालत देख करके. तो इस चीज़ ने जो है उनको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किया. जो लोगों का जो डेथ हुआ था सिविल वॉर में और लोगों को जो तकलीफ हुई थी, दैट दिस इंसिडेंट हैज़ इफेक्टेड हिम इमेंसली. और ये घटना ने उनके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लाया. और उन्होंने क्या किया, वो एक नर्स के रूप में भी उन्होंने जो है काम किया, क्योंकि एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा डेथ होने की वजह से जो है लोगों की कमी हो गई थी, डॉक्टर्स की कमी हो गई थी. तो उन्होंने जो है हॉस्पिटल्स में जो है एज अ नर्स भी काम किया. और ह्यूमन लाइफ का क्या इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ उन्होंने जो है वहीं से सीखी. और ये चीज़ उनकी पोएट्री में जो है रिफ्लेक्ट होती है, हमें देखने को मिलती है. तो ये जो सिविल वॉर का जो इंसिडेंट था उनके करियर में एक बहुत ही बड़ा इवेंट था. अब जो है हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोएट्री. उनकी पोएट्री के जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था. दैट कैप्चर्स द राइम्स ऑफ द नेचुरल स्पीच. यहाँ पे से एक लाइन छूट गया है शायद. हाँ, दैट कैप्चर्स द राइम ऑफ द. उनकी पोएट्री में जो है वो बहुत ही राइट लॉन्ग लाइन्स. मतलब जो है छोटे छोटे लाइन्स नहीं लिखा करते थे, जो लॉन्ग लाइन्स लिखा करते थे, काफ़ी बड़े बड़े लाइन्स जो है वो लिखा करते थे. और उस लाइन्स में जो उनकी पोएट्री में जो है नेचुरल स्पीच, यानी कि जो नेचुरल स्पीच का इन्फ्लुएंस मिलता है. क्योंकि उनका ये मानना था कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कि मतलब जो है लोगों के बोलचाल की भाषा होनी चाहिए. और जो थीम्स होने चाहिए वो लोगों के प्रॉब्लम्स या फिर जो लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ से थीम उन्होंने उठाया था. तो जो इस डिक्शन को बढ़ाने के लिए जो है आम बोलचाल की भाषा और जो स्लैंग्स जो यूज़ किए जाते थे उस वक्त अमेरिका में, वो उन्होंने जो क्या किया है अपनी पोएट्री में इंट्रोड्यूस किया. यानी कि एवरीडे मैन, एवरीडे लाइफ, और जो स्लैंग्स दैट वाज यूज्ड इन एट दैट टाइम, उसको जो है उन्होंने यूज़ किया है अपनी पोएट्री में डिक्शन को बढ़ाने के लिए. और उनकी जो पोएट्री होती थी, ही हैज़ यूज्ड अ लॉन्ग लाइन. He is known as a father of free verse, diction taken from the everyday life. As I told you कि he has taken diction मतलब जो है जो words use किए थे उन्होंने, जो vocabulary जो उन्होंने लिए थी वो everyday life और everyday man से जो है लिया था. He emphasized on the base reality rather than morality. मतलब ये एक चीज़ जो है मैंने ऑलरेडी जो पहले बताया है तुम लोगों को कि वो जो उनका जो बर्थ हुआ था वो 18th सेंचुरी में हुआ था. तो ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक राइटर्स ऑफ द ब्रिटेन, जैसे हमारे वर्ड्सवर्थ है, शेली हैं, इनसे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस. और जो रोमांटिक मूवमेंट चले थे तो इससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस. तो उनकी पोइट्री में जो है वो रोमांटिसिज्म दिखने को आता है. साथ ही साथ जो है इनकी वो जो 19th सेंचुरी में जो हमारा विक्टोरियन नेशन, एट दैट टाइम देयर वाज अ लॉट्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रहे थे. और जो है बहुत उथल पुथल भी मची हुई थी लोगों को एक्सेप्ट करने में. और रिलीजन का जो है मतलब क्वेश्चंस आ गया था उस टाइम में. तो इस चीज़ के बीच में जो है यानी कि मोरालिटी और साइंस, रियलिटी और रोमांटिसिज्म, इन सब चीज़ों के बीच में जो है उन्होंने बहुत ही बढ़िया तालमेल बैठाने की कोशिश की है अपनी पोइट्री में, जो कि दिख कर के आता है. बट उन्होंने क्या किया है, मोरालिटी से ज़्यादा जो है रियलिटी को फोकस किया है. जैसे मैंने कहा था कि वो साइंटिफिक डिस्कवरी से भी जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और रोमांटिसिज्म से तो इन्फ्लुएंस थे. तो ये चीज़ जो है उनकी पोइट्री में हमें दिखने को मिलता है कि वो जो रियलिटी है, रियलिटी में जो है उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है इन
कंपेयर टू मोरालिटी। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोएट तो थे, इवन ही वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पोएट ऑफ अमेरिका, क्योंकि उन्होंने उनका जो है लोग, मैंने बताया है, अभी बताऊंगी आगे, कि उनकी बुक जो थी लीव्स ऑफ ग्रास, उसको जो है फेंक दिया गया था आग में। तो वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पोएट भी थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने शादी नहीं की थी किसी से, बट एक क्रिस्ट नाम का कोई था जिससे जो है उनका अफेयर चल रहा था, तो बट उन्होंने कभी शादी नहीं की। तो इन्होंने जो है सेक्स को और जो है सेक्स को और जो उसको क्या कहते हैं, बहुत ही ओपनली ट्रीटमेंट किया है सेक्स का लीव्स ऑफ ग्रासेस में। तो लोगों को ये चीज़ जो है नहीं पसंद आई, तो इस चीज़ की वजह से जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, और भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो वो जो है अपने एज के बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे, और बहुत बड़े जो है कंट्रोवर्शियल पोएट भी रहे हैं। ही रिफ्लेक्ट्स द रेस्टलेसनेस ऑफ हिज एज। मैंने बताया था कि एट दैट टाइम सिविल वॉर चल रहा था, तो जाहिर सी बात है जब किसी भी कंट्री में वॉर होता है, खास करके जब सिविल वॉर होता है, तो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है उथल पुथल मच जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाता है। तो वो रेस्टलेसनेस जो है उनकी पोएट्री में जो है वो दिखाई देता है। हिज पोएट्री वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियलिज्म ऑफ रोमांटिसिज्म एंड द साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ द 90s। यही बात जो मैंने आपको बताई। सो ही was very much influenced by the idealism of romanticism and the scientific discoveries of the 19th century. He makes the balance between the romanticism and the realism and represent his country. उन्होंने बहुत ही बढ़िया जो है तालमेल बैठाने की कोशिश की है रोमांटिसिज्म में और जो है रियलिज्म में। यानी कि चूंकि ये कैसे पोएट थे, ये ट्रांजिशनल पोएट के रूप में जो इन्होंने काम किया है, कि इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है तालमेल बैठाने की कोशिश की है रोमांटिसिज्म में, रोमांटिक आइडियाज में, और उन्होंने जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी उसको भी जो है उन्होंने उन दोनों के बीच में जो है बहुत ही अच्छा तालमेल बैठाने की कोशिश की। और इन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे हमें जो रियलिज्म और जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है, इसको जो है वी शुड नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, और वी शुड रिस्पॉन्स इन अ पॉजिटिव मैनर। लोगों को ये चीज़ जो है उन्होंने सिखाया। यानी कि इसीलिए जो है इनको जो है रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लोगों को दिशा दी है। जैसे हमारा कंट्री जो है सर्वाइव करेगा, डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे फ्लोरिश करेगी, और ये जो है हमें वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, वी हैव टू वेलकम द साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश, इसीलिए जो है ही इज ऑल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द अमेरिका। ठीक है। हिज वर्क लीव्स ऑफ ग्रासेस एक्सप्रेसेस द फुलफिलमेंट ऑफ अमेरिकन रोमांटिसिज्म। जो लीव्स ऑफ ग्रासेस है वो उसमें बहुत सारे थीम्स आए हैं। रियलिज्म का थीम है, रोमांटिसिज्म का थीम है, सेक्स का थीम है। तो नंबर ऑफ थीम्स है, जो कि बहुत सारी पोएट्री है। पहला जो उसका एडिशन आया था उसमें 12 पोएट्रीज थी। तो मतलब इतने सारे पोएट्री, और लास्ट में शायद जो है 400 या 500 पोएट्रीज हैं जो लास्ट एडिशन, जो कि उनके डेथ बेड पे है। 9th एडिशन, ये क्वेश्चन भी आता है हमारा कि विच एडिशन कम्स ऑन हिज डेथ बेड। तो 9th एडिशन जो है उनके डेथ बेड पे आया था। तो जो इन्होंने इतने सारे पोएट्रीज का कलेक्शन जो है उसमें, तो उन्होंने जो है डिफरेंट जो आइडियाज थे उसको जो है इस लीव्स ऑफ ग्रासेस में जो है बताने की कोशिश की है। His great works Leaves of Grasses expresses the fulfillment of American Romanticism. American Romanticism का जो fulfillment है और उसका जो problems है उसको जो है इन्होंने Leaves of Grasses में बताने की कोशिश। He visualizes the role of poet as a seer, prophet, genius who understands his time and expresses the problems of his age. Ideal poet always understand the reality of nature and self. ये बहुत बड़ी बात है कि जो है he visualizes the role of poet. उन्होंने पोएट के रोल को क्या बोला है कि पोएट का जो रोल है दैट इज अ सीर यानी कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रोल क्या होता है? प्रॉफिट का रोल होता है कि लोगों को का मार्गदर्शन करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना। दैट द बिगेस्ट वर्क, चाहे अगर हम लॉर्ड कृष्णा की बात कर ले, चाहे हम जीसस क्राइस्ट की बात कर ले, चाहे हम प्रॉफिट की बात कर ले, तो ये इनका काम क्या था? लोगों को सही दर्शन दिखाना, मार्गदर्शन करना। तो जो पोएट होता है उसका भी काम क्या होता है? मार्गदर्शन करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना। तो वो जो है पोएट को क्या मानते थे कि पोएट का जो रोल है वही रोल है जो कि एक प्रॉफिट का रोल होता है। तो लोगों
का मार्गदर्शन करना, ये क्या है, पोएट का रोल है। वो बहुत बड़े जीनियस थे एंड ही अंडरस्टैंड हिज टाइम एंड एक्सप्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ हिज एज। उन्होंने अपने एज को, यानी कि जिस एज में वो पैदा हुए थे, उस एज को बहुत ही बढ़िया से उन्होंने समझा था। और ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज एज, ही अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ अमेरिका। और उसको जो है उन्होंने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, अपने टाइम को, अपने टाइम के प्रॉब्लम को, अपने लोगों के प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से उन्होंने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। आइडियल पोएट ऑलवेज अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ नेचर एंड सेल्फ। नेचर का बहुत, मैंने पहले भी बताया है कि जो है रोमांटिक आइडियलिज्म को जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है प्रभावित है। तो नेचर जो है, यानी कि जो नेचर, जो नेचुरल ब्यूटी है, या फिर जो जो गॉड, जो या जो मतलब जो गॉड की जो रियलिटी है, उसको जो है अंडरस्टैंड करना, नेचर को अंडरस्टैंड करना और सेल्फ को अंडरस्टैंड करना, ये एक पोएट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने अंडरस्टैंड किया एंड दीज थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड इन हिज पोएट्री। अब जो है नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट वर्क्स आते हैं। ठीक है, तो उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, दैट इज द लीव्स ऑफ ग्रासेस। एक्चुअली जो है दो ग्रेट वर्क्स हैं इनको। पहला जो लीव्स ऑफ ग्रासेस, ये भी एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, और जिसमें जो है बहुत सारी पोएट्री, जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और ये सारी पोएट्री जो है इसमें आई है। ठीक है, दूसरा जो है उनका एक और, जिसमें एक और कलेक्शन है ड्रम करके, तो उसमें जो है 18 पोएम्स का कलेक्शन है, वो हम आपको आगे बताएंगे। Clear. So contemporary critics describe him as a modern Christ. Modern Christ उनको क्यों कहा जाता है? Tell me. Am I audible to every student? क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी को इम्पोर्टेंस, और अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया है, कोरिलेट करो। उन्होंने जो सिविल वॉर में मेजर नर्स काम किया। हाँ, सिविल वॉर में नर्स काम किया। एक्चुअली जो है इसको वन वर्ड में हम डिफाइन कर सकते हैं मैम कि वो डेमोक्रेटिक न्यूज़पेपर में मतलब वो काम करते थे, मतलब उसके वो थे, एडिटर थे वो। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे तुम इसको इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो कि उनका ये मानना था कि जो पोएट है उसका वर्ड नाम, उसका काम क्या है, वो उसका विजन कैसा होना चाहिए, कि पोएट क्या होना चाहिए, एक सीर होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो क्या, प्रॉफिट का काम क्या है, लोगों का मार्गदर्शन करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना। तो तुम अमेरिका या इंग्लैंड में अगर तुम देखोगे, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, ना तो वहाँ पे हिंदुइज्म है, ना वहाँ पे मुस्लिम है, वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या, क्रिश्चियनिटी है। तो क्रिश्चियनिटी के जो है प्रॉफिट कौन थे, जीसस क्राइस्ट थे। ठीक है, वो जो है सन ऑफ गॉड थे और वो प्रॉफिट थे, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आए थे। ठीक उसी तरीके से जो है जब 18th सेंचुरी में, जब जब जिस टाइम के ये मतलब 18 अपने एज में जो है उन्होंने जो इतनी सारी उथल पुथल जो मची हुई थी और इतना जो प्रॉब्लम्स था, उसको इन्होंने समझा, नेचर को समझा, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा, जो लोगों की जो सोच थी, जो डिक्लाइन हो रहा था लोगों को, और उस चीज को समझा, उनके हर एक प्रॉब्लम्स को समझा और उसको दूर करने की कोशिश की, लोगों का मार्गदर्शन करने की कोशिश की। तो अपने एज में, यानी कि जो उनका जो एज था, उस एज में लोगों वही काम किया जो जीसस क्राइस्ट ने अपनी एज में किया। तो इसीलिए इनको जो है मॉडर्न क्राइस्ट कहा जाता है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोगों को? चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे जो है वो हॉस्पिटल के थ्रू जो लोगों का हेल्प करके हो, या फिर जो है लोगों को उनकी पोएट्री के थ्रू हो कि जो है हम अमेरिका सरवाइव करेगा और जो है डेमोक्रेसी यहाँ पे जो है सरवाइव करेगी। तो जो भी उनके पास माध्यम था, उस माध्यम से जो है लोगों को बताने की कोशिश की। तो उन्होंने वही काम किया जो एक प्रॉफिट करता है, जो एक सीर करता है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही था कि जो है एक पोएट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो एज अ लाइक अ प्रॉफिट वर्क करना चाहिए। उसका काम है लोगों कंट्री का मार्गदर्शन करना। आया समझ में मैं जो बोलना चाह रही हूँ? यू ऑल आर एग्री विथ मी? यस मैम। अब देखो सेकंड पॉइंट, हिज फर्स्ट विजन ऑफ द मास्टरपीस लीव्स ऑफ ग्रासेस अपीयर्ड इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। हिज फर्स्ट विजन, उनका जो पहला स्क्रीन शो नहीं हो रही इसकी जो आप पढ़ा रहे हो। किसी को नहीं शो हो रही है? मैम आ रही है लेकिन बोर्ड बना रही है, शीट शो हो रही है। एक बार
एक बार फिर से ज्वाइन करो ना, तो फिर जो है जिसको भी प्रॉब्लम उससे। मैम आ तो रही है, लेकिन ओल्ड वाली शीट आ रही है, जो पढ़ा रहे हो वो वाली नहीं आ रही। वो नहीं आ रही, यही नहीं पढ़ी। नहीं मैम, जो पढ़ा रही है वही आ रहा है। वही आ रहा है बेटा, वही वही आ रहा है। तुम एक बार जो है ना ये हो जाओ, क्या कहते हैं, फिर से ज्वाइन करो। तुम फिर से ज्वाइन करो तो तुम्हारा जो ओके प्रॉब्लम है ना मैम। वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। हिज फर्स्ट वर्जन ऑफ मास्टरपीस लीव्स ऑफ ग्रासेस अपीयर्ड इन 1855 एंड द लास्ट एडिशन केम इन 1892। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लीव्स ऑफ ग्रासेस का जो फर्स्ट पार्ट है वो कब जो है आया था। तो लीव्स ऑफ ग्रास का जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट एडिशन, याद रखना ये 9th एडिशन में आया था। और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा वर्क है जिसको बार बार रिवाइज किया गया है। तो ये चीज याद रखना कि लीव्स ऑफ ग्रासेस जो है उनका एक ऐसा वर्क है जिसको कई बार रिवाइज किया गया है, कई बार एडिट किया गया है, कई बार जो है उसमें एडिशन किया गया है। तो ये ऐसा वर्क है उनका जिसको बार बार रिवाइज किया गया है, और ये 9th एडिशन में आया था। पहला एडिशन जो है वो आया था 1855 में, ठीक है, जिसको एमर्सन ने बहुत ही ज्यादा प्रेस किया था। फिर 1856 में जो दूसरा एडिशन आया था उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो एडिशन जो एमर्सन ने जो है उनको जो प्रेस किया था, उस लाइंस को उन्होंने जो है बुक के लास्ट पेज के लास्ट कवर पेज पे जो है उन्होंने लिखा था। तो और जो लास्ट एडिशन और पहले एडिशन में जो है 12 पोएट्रीज थी। दूसरा जो है उनका जो है 1892 में जो है आया था। सॉरी 1892 में जो है इनका लास्ट एडिशन आया था। तो इस 1892 में जो एडिशन आया था उसको डेथ बेड एडिशन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बनता है कि विच एडिशन ऑफ विटमैन इज नोन एज द डेथ बेड एडिशन। तो ये जो वर्क था 1892 में जो आया था इसको डेथ बेड एडिशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसी साल जो है इनकी डेथ भी हो गई थी और ये लास्ट एडिशन भी आया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। ग्रास रिप्रेजेंट द डेमोक्रेसी एंड लीव रिप्रेजेंट द पेजेस ऑफ द बुक। इसमें जो लीव्स ऑफ ग्रासेस में जो है, जो ग्रास है, जो वर्ड ग्रास है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, डेमोक्रेसी। मैंने बार बार बोला है कि इनको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, इसको डेमोक्रेटिक पोएट कहा जाता है। तो जो वर्ड जो ग्रास है वो किसको बताता है, वो डेमोक्रेसी को बताता है। और जो लीव्स है, जो बुक में जो पेजेस है वो उसको क्या बताते हैं, लीव्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो उन्होंने जो है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है उनकी पोएट्री। तो इनको जो है डेमोक्रेसी से बहुत ही ज़्यादा जोड़ करके देखा जाता है। इनको रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहा जाता है, इनको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और उनको डेमोक्रेटिक पोएट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि विच पोएट इज नोन एज द डेमोक्रेटिक पोएट ऑफ अमेरिका। तो ये जो है आप लोग इसमें इमर्सन लिखिए, ये क्या कहते हैं विटमैन लिखिएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, इस स्लाइड तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसको? नो मैम। हाँ आगे बढ़े, एकदम ध्यान से रखना, ठीक है। अभी बस 2 स्लाइड और है। Emerson praises Whitman's poetry as a most extraordinary piece of wit, wisdom that America yet to contribute। ये बहुत ही important लाइन है कि किसने बोला था, इमर्सन ने बोला था। और किसके लिए बोला था, विटमैन के लिए बोला था। जब उनका फर्स्ट पब्लिकेशन, फर्स्ट एडिशन जो आया था 1885 में, लीव्स ऑफ ग्रासेस, जो कि 12 बुक्स में था, सॉरी 12 पोएम्स जिसमें था। तो जब ये आया तो बहुत ही ज़्यादा इसको प्रेस किया गया, ठीक है। और इमर्सन ने इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेस किया और उनके इसके बारे में जो है ये लाइन लिखी, ठीक है। तो उसको ये जो उन्होंने, जब इमर्सन तो से ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उसको अपना मास्टर भी मानते थे। तो जब उन्होंने, मैंने पहले बताया था कि वो जो है इमर्सन और कार्ल लिली से जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो जब इमर्सन ने उनके बारे में ऐसा बोला तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। जो सेकंड एडिशन जो आया था तो उन्होंने सेकंड एडिशन के लास्ट कवर पेज पे जो है इस लाइन को जो है कोट किया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि दीज लाइन्स स्पोकन बाय, किसने ये लाइन बोली है और किसके बारे में। सो यू हैव टू के, बट जब हम हमेशा हमें सब तारीफ ही मिले, सब हमें हमारे अच्छा ही बोले, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सब हमें पसंद करे ये ज़रूरी नहीं है। तो जॉन ग्रीमसन विटर, उनको ये जो है वर्क, जो लीव्स ऑफ ग्रासेस था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। एंड ही हैज थ्रोन इट इन द फायर प्लेस, उन्होंने उसको आग में फेंक दिया था। कहा था कि एकदम बेकार है, कुछ भी नहीं है, एकदम घटिया वर्क है, ठीक है।
दूसरा जो है अनदर क्रिटिक डिसमिसेस इज एट द बारबेरिक यॉप, इसको जो है मतलब बारबेरिक यॉप भी कहा जाता है, कहते हैं कि एकदम बेकार सा वर्क है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है शायद ऐसा मतलब जो सेक्स का जो ट्रीटमेंट था बहुत ही ज़्यादा ओपनली किया था, और जो है उन्होंने शादी नहीं की थी, और होमोसेक्सुअल ऐसा माना जाता है कि ही वॉज होमोसेक्सुअल। तो उस एज में मतलब उन जिस एज में वो जो है थे, उस एज में इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना मतलब लोगों के लिए, या फिर चाहे वो राइटर्स हो या क्रिटिक्स हो, उतना जो है इजी नहीं था इन मतलब सेक्स का इस तरीके से जो ट्रीटमेंट या फिर होमोसेक्सुअलिटी इस चीज को एक्सेप्टेंस उतना नहीं था। तो इस उन्होंने जो है उसको बारबेरिक यॉब भी कहा है। दूसरे अदर्स राइटर जैसे लॉन्गफेलो होम्स है या फिर लॉवेल है, वो लोग भी जो है इससे जो है बहुत ही ज्यादा खुश नहीं थे, उनसे विटमैन से बहुत ज्यादा। लेकिन बाद में जो है लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, लोगों ने उनकी आइडियोलॉजी को समझा, और फिर बाद में जो है उनको बहुत ही ज्यादा प्रेस किया गया, और वो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोएट बन गए। लीव्स ऑफ ग्रासेस इज आल्सो नोन एज द डेमोक्रेसी बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी एंड अ सेक्स पोएम। ये दो चीज को ध्यान में रखना कि जो लीव्स ऑफ ग्रासेस उसको बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें जो है उन्होंने डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने का जो उनका आइडियल था उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है लीव्स ऑफ ग्रासेस में। और दूसरा सेक्स पोएम भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि उन्होंने सेक्स को बहुत ही ओपनली जो है ट्रीटमेंट किया है इस पोएट्री में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। ही वॉज ओनली 36 year old when the Leaves of Grasses appeared first. It was revised many time and it has 9th edition. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पीजीटी में कि जब पहला एडिशन जब आया था तो उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र सिर्फ 36 साल थी जब उनका पहला एडिशन लीव्स ऑफ ग्रासेस का आया था। इस फर्स्ट एडिशन केम्स इन 1855 which contains 12 poems. पहला एडिशन जो है 1855 में हुआ था, उस वक्त उनकी उम्र 36 साल थी और उसमें 12 पोएट्स थी। तो ये पॉइंट को एकदम याद रखना, ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रासेस में। अब दूसरा जो है हमारा है ओ कैप्टन माई कैप्टन। ही रोट 4 elegies on the death of Abraham Lincoln and among for the 2 poems are very popular. उन्होंने एक्चुअल में जो है वो 4 पोएट्री लिखी थी अब्राहम लिंकन के डेथ पे। अब्राहम लिंकन का जो एसासिनेशन हुआ था उसने उन्होंने डीपली अफेक्ट किया, और उन्होंने उसकी याद में जो है 4 एलेजीज लिखी थी। पहला जो है ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेटाफर पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन इन 1865। तुम लोगों को मालूम होगा कि 1865 में ही जो है उनकी डेथ हो गई थी, उनका असासिनेशन हुआ था, और वो अब्राहम लिंकन जो थे वो 16th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो उनकी डेथ ने जो है इनको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट किया था, और उनकी डेथ से इफेक्ट होकर के उन्होंने 4 पोएट्री लिखी। पहला जो लिखा था ओ कैप्टन माई कैप्टन, उसके बाद व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड, ठीक है, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। ये दूसरा पोएम लिखा था हर्ष बी द कैंप्स टुडे एंड द ड्रस्ट वाज वंस द मैन। ये 4 पोएम लिखा था। इसमें से 2 पोएट्री तुम लोगों को एकदम याद रखनी है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। पहला ओ कैप्टन माई कैप्टन, दूसरा ओ व्हेन लाइलैक्स इन द डोरयार्ड। ये मैंने इसमें लिख दिया, थोड़ा सा कलर वो हो रहा है। व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। ये 2 पोएट्री जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी, तो तुम लोगों को ये चीज याद रखना है, ठीक है। और ये जो 2 पोएट्री है ओ कैप्टन माई कैप्टन और व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड, पब्लिश इन हिज कलेक्शन ऑफ पोएम ड्रम टैप्स व्हिच कंटेन्स 18 पोएम, ठीक है। तो उनका जो पोएट्री का जो वॉल्यूम्स था वो 2 में आया था। पहला मतलब पहला जो कलेक्शन था उनका वो था लीव्स ऑफ ग्रासेस, और दूसरा जो कलेक्शन था उनका ड्रम टैप्स, ठीक है। तो जो ड्रम टैप्स कलेक्शन था उसमें इनकी 2 पोएट्री थी, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड और ओ कैप्टन माई कैप्टन। ये दोनों पोएट्री जो है ये एलेजीज है, और उन्होंने लिखी है किस पे? अब्राहम लिंकन के डेथ पे लिखी थी। एक्चुअली उन्होंने 4 लिखी है जिसमें से 2 बहुत फेमस है, और हमको ये दोनों को एकदम अच्छे से याद रखना है। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। उसका जो है उसके बाद जो है हिज फर्स्ट वर्क केम इन 1842 व्हिच वाज अ नोवेल एंड फ्रैंकलिन इवान करके उनका जो है एक वर्क था जो कि एक नोवेल था, वो आया था 1842 में। लेकिन ये जो वर्क था ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये फ्लॉप वर्क था उनका। ये पढ़िए, याद रखना कि पहला जो वर्क था उनका नोवेल था जो उसका नाम फ्रैंकलिन इवान था। हिज फर्स्ट पोएम ब्लड मनी पब्लिश इन 1815 रिटन इन फ्री वर्सेस, ठीक है। और उनका जो फर्स्ट पोएम था ये
फेमस हुआ था, तो पहला जो वर्क था, पोएट्री था उनका, पहला पोएट्री जो उन्होंने लिखा है वो ब्लड मनी लिखा है, जो कि पब्लिश हुआ था 1850 में, और ये फ्री वर्स में लिखा गया। मेरे को फटाक से तुम लोग बताओ कि 1850 का इंपॉर्टेंस क्या है लिटरेचर में, कई बार मैं बता चुकी हूँ। तेजो, मैम एक राघव, मेमोरियम आया था 1850 में, और मैम एक टेनिसन की भी कोई पोयम है, आई थिंक उसका मुझे मैम नाम नहीं आ रहा, किसका और किसका? टेनिसन की, टेनिसन लॉर्ड का, टेनिसन। हाँ, लॉर्ड टेनिसन की इन मेमोरियम आई थी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड्सवर्थ से, ठीक है। वर्ड्सवर्थ का जो लास्ट पोएम है प्रील्यूड, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन है वर्ड्सवर्थ का? प्रील्यूड। हाँ, तो 1850 में प्रील्यूड आया था। 1850 में जो है उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हम उसके आगे वाली एज में बढ़ते हैं। जब हम आगे वाली एज में पढ़ते हैं तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो है वर्ड्सवर्थ के प्रेज में मेमोरियल वर्सेस लिखा था। तो मेमोरियल वर्सेस भी 1850 में, ये सब जो हम बोल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट से तो याद है। 1850 में मैथ्यू आर्नोल्ड की मेमोरियल वर्सेस आई थी, जो उन्होंने वर्ड्सवर्थ के प्रेज में लिखी थी। उसी साल जो है टेनिसन का इन मेमोरियम आया था 1850 में, और उसी साल टेनिसन को जो है पोएट लॉरियट बनाया गया था। उसी साल जो है वर्ड्सवर्थ का जो है डेथ हुआ था। उसके बाद जो है एक नॉवेल भी आई थी इसकी, डेविड कॉपरफील्ड आई थी उस साल। उसी एज के बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे, क्या नाम था उनका? हाँ, चार्ल्स डिकेंस की जो है नॉवेल भी आई थी। तो और उसी साल जो है इनका वर्क ब्लड मनी भी, इनका जो विटमैन का, अमेरिकन राइटर विटमैन का ब्लड मनी पोएम आया था। आ गया क्लास, समझ में आ गया सबको कि 1850 का क्या इंपॉर्टेंस है? तो जितना भी मैंने अभी वर्क बताया है 1850 से रिलेटेड, वो सारे वर्क जो है तुम लोग ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका वर्क है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसके जो पॉइंट्स है उसको एकदम अच्छे से याद रखना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पब्लिश इन 1855 एट द एज ऑफ 37। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 37 थी जब सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ पब्लिश हुई 1855 में। इस वक्त उनकी एज 1855 है। पीजीटी में ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज पब्लिश एंड व्हाट वाज द एज ऑफ विटमैन व्हेन द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज पब्लिश, ठीक है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज पब्लिश इन 1855 एट द एज ऑफ 37। इट इज द पोएम ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इट इज अ पोएम ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये जो पोएट्री है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग था। किसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग था? माई सेल्फ। जो माई सेल्फ वर्ड है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? एवरी मैन को, एवरी मैन ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के जितने भी लोग हैं उसको ये वर्ड माई सेल्फ जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यानी कि पूरे अमेरिका की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को क्या करता है? ये पोएट्री बताता है, ठीक है। ये लिखा गया है कि इसमें फ्री वर्स में लिखा गया है। इट कम्स इन द कलेक्शन ऑफ हिज पोएम लीव्स ऑफ ग्रासेस में। ये आया था किसमें? लीव्स ऑफ ग्रासेस के कलेक्शन में आया था। एंड ट्राइज टू रिप्रेजेंट द पोएटिक विजन ऑफ हिज पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। और इसमें जो है उन्होंने उनका खुद का क्या जो पोएटिक विजन है उसको बताने की कोशिश की है। तो ये जो पॉइंट है इसको एकदम अच्छे से तुम लोग ध्यान में रखना है। इट इज डिवाइडेड इनटू 52 सेक्शन एंड ईच सेक्शन रिप्रेजेंट द वीक्स एंड ईयर्स। इसमें काफी बड़ी पोएम है, 52 सेक्शन है। बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों ने पढ़ा होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो फर्स्ट 13 लाइन उनके पोएट्री सिलेबस में है, ठीक है। तो ये 52 में सेक्शंस में डिवाइडेड है, और ये जो 52 सेक्शन है ये वीक्स और ईयर्स को बताते हैं, ठीक है। द वर्ड माई सेल्फ स्टैंड फॉर एवरीवन। एवरीवन कौन? एवरीवन मतलब हुआ सारे अमेरिका के एवरीवन पीपल, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वॉल्टर वेटमैन सेलिब्रेट्स द थीम ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि विच पोएम ऑफ विटमैन सेलिब्रेट्स द थीम ऑफ डेमोक्रेसी। तो तुम लोग लिखोगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वॉल्टर विटमैन सेलिब्रेट्स द थीम ऑफ डेमोक्रेसी एंड द वननेस ऑफ मैनकाइंड। वननेस यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? मतलब हम सब एक हैं, यही चीज बताते हैं ना। और मतलब डेमोक्रेसी के लोगों को फ्रीडम देना, लोगों की मतलब जो उनके विचार हैं उसको रिस्पेक्ट देना। मेन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
जैसे मोनार्किस में क्या होता है, राजा का इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर एक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी, मतलब जितना भी इंडिविजुअल कंट्री में है, सबका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एवरी वन इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे जो वर्ड है माई सेल्फ, वो किसको बताता है, एवरी मैन ऑफ अमेरिका। और ये क्या करता है, उनके वननेस को, यानी कि हम सब एक हैं, हम सब एकजुट है, यानी कि वी ऑल आर वन, जितने भी अमेरिकन है वो सब वन है। तो वननेस ऑफ मैनकाइंड को बताता है, स्पेशली द अमेरिकन पीपल, as well as represent the transcendentalist through the connecting mankind common soul। मतलब जो, मतलब ह्यूमन माइंड को बताता है, ह्यूमन किस तरीके से माइंड और सोल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। द पोएम ऑल्सो फोकसेस ऑन द थीम दैट लाइफ इज अ जर्नी टू अनकवर वन सेल्फ वन आइडेंटिटी। लाइफ क्या है, एक जर्नी है, किस चीज की जर्नी, अपने आप को डिस्कवर करने की, अपने सेल्फ को डिस्कवर करने की, जिंदगी में जो हम अपने आप को समझने की, गॉड को समझने की, ठीक है, गॉड से मैन के कनेक्शन की। तो ये क्या है, लाइफ एक जर्नी है, ठीक है, तो और रियलिटी को समझने की, ठीक है। तो ये चीजों को जो है उन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बताने की कोशिश की है। ही सेज दैट आई एम द पोएट ऑफ बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ सोल। ये लाइन ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो है लाइन इसमें ही आई है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ही आई है। वो अपने बारे में ही बोलते हैं कि आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल। पोएट ऑफ द बॉडी क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया था कि उनका जो है एक क्रिस्ट नाम के जो है से आदमी के साथ जो है उनका अफेयर था, उन्होंने कभी शादी नहीं की। तो उन्होंने जो है क्या किया, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल। तो उस चीज को जो है यहाँ पे उन्होंने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश किया है, यानी कि होमोसेक्स, मतलब उनका जो सेक्स का जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट बताने की कोशिश की है, कि जो उनका जो ये सोच था, मतलब जो ओपन ट्रीटमेंट था, उसको जो है बताने की कोशिश की है। ये जो आई हियर अमेरिका सिंगिंग, ये भी इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, पैट्रियोटिक लिरिक है जो कि विटमैन ने लिखा था। आई हियर अमेरिका सिंगिंग, ये एक वर्क है उनका जो कि पैट्रियोटिक लिरिक है, ठीक है। अब तुम लोग आ जाओ इंपॉर्टेंट लाइंस के ऊपर। दैट आर्ट लाइक चीज एंड शर्ब्स हैड अ नेचुरल ग्रोथ व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम। ये जो है डोरियार्ड ब्लूम की लाइन है, जो उन्होंने, ये एक एलिजी है जो उन्होंने लिखी थी किस पे, अब्राहम लिंकन के डेथ पे लिखा था। उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, दैट आर्ट लाइक अ ट्रीज एंड शर्ब्स हैड अ नेचुरल ग्रोथ। कहता है कि ये जो ट्रीज है या जो शर्ब्स है या भी जितने भी जो भी नेचुरल चीजें हैं, ट्रीज है, शर्ब्स है, हर्ब्स है, इसमें क्या होता है, नेचुरल ग्रोथ होता है, मतलब खुद से ही जो है वो बढ़ते हैं, उनको हम काट भी देते हैं। लेकिन अब्राहम लिंकन एक ऐसे शख्स थे कि जिसका एक बार अगर खत्म हो जाए तो फिर वो दोबारा नहीं आ सकती, यानी कि वो एक ऐसी शख्सियत है, वो ही इज अ पर्सनालिटी दैट वंस बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। जैसे शेक्सपियर खत्म हो गया, वैसा दूसरा कोई शेक्सपियर नहीं आएगा। मिल्टन खत्म हो गया, वैसा कोई मिल्टन नहीं आएगा। इनको, अब्राहम लिंकन के मरे हुए इतना टाइम हो गया, डेथ हो गया, लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, क्यों, उनकी अच्छाई की वजह से। तो यही बोल रहा है कि ये ही इज काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। जैसे शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, वो क्या होते हैं, वो एक बार खत्म हो जाता है, नेचुरल ग्रोथ होता है, खत्म हो गया तो वो दोबारा आ सकता है। लेकिन अब्राहम लिंकन जो एक बार अगर वो खत्म हो गया तो वो क्या, इनका जो एक बार डेथ होगी तो वो दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन जो उनकी शख्सियत थी वो हमेशा जो है ग्रो करती ही रहेगी, मतलब उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनकी अच्छाई है, वो ग्रो करती रहेगी। लेकिन वो एक बार जा चुके हैं और वो अब दोबारा नहीं आएंगे। तो ये लाइन है किसकी, व्हेन लाइलेक्स इन द लास्ट ब्लूम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हियर कॉफिन्स दैट स्लोली पास्ट आई गिव माई स्प्रिंग लाइलैक। ये भी जो है कॉफिन, तुम लोग को मालूम होगा कि जितने भी क्रिश्चियंस जो है जब वो मरते हैं तो उनको कॉफिन में डाला जाता है। तो वो कॉफिन क्या कर रहा है, स्लोली पास्ट कर रहा है। और आई गिव में स्प्रिंग लाइलैक, लाइलैक जो है एक फ्लावर का नाम है, तो वो क्या करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, किसे, लाइलैक से, ठीक है। स्प्रिंग जो है वो किसको बताता है, तुम किसको बताता है, स्प्रिंग सीजन में किसको बताता है, मतलब जो रीजेनरेशन को बताता है। तो यहाँ ये लाइन भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम की लाइन है। तीसरा लाइन जो है फिर उसी से आया है, ओ पावरफुल वेस्टर्न, पावरफुल स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट्स। ये लाइन भी जो है
वेन लाइलेक लास्ट इन द ब्लूम की लाइन है, ठीक है। और ये पोएट्री किस में पब्लिश हुई थी? ड्रमस्टिक में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये का मतलब क्या, इसमें जो है 3 सिंबोलिज्म उन्होंने बताने की कोशिश की है। देखो, हियर ही यूज द 3 सिंबोलिम्स इन द पोएम। पहला जो है वो लाइलेक, पहला जो है उन्होंने लाइलेक बतानी है। आप इस पोएट्री का, इस लाइन का मीनिंग बता रहे हैं। देखो, ही यूजेस 3 सिंबल्स इन द एबव पोएम। फर्स्ट लाइलेक, ठीक है, फॉर द अमेरिकन पीपल। लाइलेक तुम लोगों को पता है कि एक फ्लावर होता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल। ये लाइलेक वर्ड का यूज जो है सो मैथ्यू आर्नल्ड ने भी जो है अपने दोस्त, जो उनका फ्रेंड था, उसके डेथ पे जो है एक एलिजी लिखी थी, उसमें भी ये वर्ड यूज किया था, लाइलेक। तो ये जो लाइलेक जो है यहाँ पे जो है लाइलेक बता एक फ्लावर है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? लव ऑफ अमेरिकन पीपल को बताए। तो वो बता रहे हैं ओ पावरफुल वेस्टर्न, ओ पावरफुल स्टार। यहाँ पे और दूसरा जो इसमें सिंबल यूज किया गया स्टार, यानी कि फॉलन स्टार बोला गया। जो पहला जो है वो लाइलेक है जो किसको बताता है? लव ऑफ अमेरिकन पीपल को बताता है। दूसरा जो है स्टार सिंबल यूज किया गया है, फॉलन स्टार। और ये स्टार कौन है? दैट इज अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो है वो क्या है? एक फॉलन स्टार है। ये दूसरा सिंबल जो स्टार का सिंबल जो है उनके लिए यूज किया गया है। और तीसरा सिंबल जो है हर्मिट थ्रस्ट। ये एक ऐसी बर्ड है जो कि बहुत ही कम बोलती है, कभी कभी ही बोलती है। तो ये तीसरा जो है 3 सिंबल जो है इसमें यूज किया गया है, ठीक है। ये 3 सिंबल्स को यूज करके जो है उन्होंने ये पोएट्री बनाई है, व्हेन लाइलेक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। तो ये कह रहा है ओ पावरफुल वेस्टर्न, ओ पावरफुल स्टार, ओ शेड ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट्स। यानी कह रहा है कि ये जो है मतलब उस जो उसका जो डेथ हुआ उस सिनेरियो को क्रिएट करने की कोशिश किया जाए कि जो है अब इतना बड़ा जो स्टार है वो क्या हो गया? वो चला गया और अब वो दोबारा नहीं आएगा। ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ। ये लाइन किसकी है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है। द वर्ड माई सेल्फ स्टैंड फॉर एवरी वन अमेरिका। यहाँ पे मैंने भी बताया था कि ये जो माई सेल्फ है, आई सेलिब्रेट, वो किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? माई सेल्फ को, इन खुद को सेलिब्रेट कर। यहाँ पे माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ? अमेरिका, यानी कि अमेरिकन पीपल को क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट करते हैं। एंड आई सिंग माई सेल्फ, यानी कि जो अमेरिका है वो क्या कर रहा है? सिंग कर रहा है, ठीक है, और सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये माई सेल्फ की लाइन है। और माई सेल्फ जो वर्ड है वो किसको बताता है? सिंबलाइज करता है, वो सिंबलाइज करता है पूरे अमेरिकन पीपल को। डू आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये भी जो लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान देना, एलियट का भी ऐसे ही करके एक लाइन है, डू आई कंट्राडिक्ट करके एक लाइन है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अगर यहाँ पे माई सेल्फ लगा हुआ है तो ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है, डू आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ, ये जो है माई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन, ठीक है। उसके बाद उनका एक वर्क था क्रॉसिंग ब्रुकली फेरी, 1856 में आया था, ठीक है। ये वर्क भी इंपॉर्टेंट है, 1856 में उनका वर्क आया था, तो ये डेट याद रखना। दूसरा ये है अनहैबिटेड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स इज फाउंड इन हिज वर्क चिल्ड्रन ऑफ एडम। उनका एक वर्क है चिल्ड्रन ऑफ एडम, जिसमें जो है उन्होंने अनहैबिटेड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स की बात की है। ये भी वर्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा अब आ जाओ पैसेज टू इंडिया, ठीक है। A poem which is written in 1871 में लिखा गया है by Walt Whitman, describe the imaginary journey that a speaker wants to take into the fable India. Passage to India begins with the description of a new marvel of the modern world and how they are a part of a God plan. उनका ये मानना था कि जो भी चीज़ें, जैसे उनकी एक फिलॉसफी ये भी थी कि जो भी चीज़ें होती हैं अच्छी बुरी, वो सब क्या होती है? गॉड की मर्जी से होती है। और वो सारा चीज़ें जो है वो क्या किया? ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, गॉड ने सबको क्या किया? प्लान किया। तो ये भी उनकी एक फिलॉसफी है, ठीक है। अब पैसेज टू इंडिया ये क्या है? इसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। ये क्या है? एक जर्नी है। किस चीज की जर्नी? दैट अ स्पीकर वांट्स टू टेक अ फेबर। जब वो इंडिया में आता है तो उसकी चीजों को देखता है, तो उसका क्या है? एक जर्नी है। पैसेज टू इंडिया बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यू मार्बल ऑफ द मॉडर्न एंड हाउ दे आर द पार्ट। मतलब किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड्स में जो है जो चेंजेस हुए हैं उसको जो है इसमें बताया गया है पैसेज टू इंडिया में, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है
आता है इसमें। वी फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्विस कैनाल, स्विस कैनाल का डिस्क्रिप्शन पाया जाता है। ट्रांसडेंटल ट्रांस का डिस्क्रिप्शन पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल रोड का डिस्क्रिप्शन पाया जाता है। एंड द वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक, ये 3-4 चीजें हैं जिसका डिस्क्रिप्शन जो है हमको किसमें मिलता है, पैसेज टू इंडिया में मिलता है। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, 1871 में आया था। और एक वर्क है पैसेज टू इंडिया इज अ नॉवेल, जो कि E.M. फॉस्टर से लिखा गया। तो बहुत ही ध्यान से देखना, कहीं ऐसा ना हो कि पैसेज टू इंडिया इज अ नॉवेल बाय, और उसमें तुम जो है इमर्सन ये क्या कहते हैं, विटमैन लिखा हो और तुम उसमें लगा दो और वो गलत हो जाए। तो वहां पे नन ऑफ दीज लिखा रहेगा तो नन ऑफ दीज में लगाना, ये ध्यान है। यूलिसिस एक पोयम है जो कि किसका है, टेनिसन का है। और यूलिसिस एक नॉवेल है जो कि जेम्स जॉयस का है। तो ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखना कि कौन नॉवेल है तो वो किसका है और पोएट्री है तो किसका है। तो उस हिसाब से उस प्रोस्पेक्टिव्स को ध्यान में रख करके तुम लोग पढ़ाई करना। चलो ये खत्म हो गया। अंडरस्टैंड एवरीबडी, अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया? जी मैम।